تلنگانہ کے عوام کے لیے محکمہ موسمیات نے اہم الرٹ جاری کرتے ہوئے آئندہ چند دنوں کے دوران ریاست میں موسمی تبدیلیوں کی پیشگوئی کی ہے۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز کے مطابق اگلے 3 دن تک مختلف اضلاع میں بارش کا امکان ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں عارضی کمی بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کھمم، نلگنڈا، محبوب آباد، ورنگل، سدیپیٹ، راجنا سرسلہ اور سوریہ پیٹ اضلاع میں مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس موسمی نظام کے گزرنے کے بعد ریاست میں درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے کا امکان ہے اور آئندہ 3 دنوں کے بعد زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک اضافہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید پیشگوئی کی ہے کہ 10 تاریخ سے ریاست میں خشک موسم غالب آنے کا امکان، جس کے باعث بارش کا سلسلہ رک جائے گا اور گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine labs and high-tech computer lab. تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ روزگار ضمانت اسکیم کو ختم کرنے کی سازش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت غریبوں کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کر رہی۔ جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کویتا نے کہا کہ روزگار ضمانت اسکیم کے تحت کام کے دنوں میں کمی اور فنڈز کی عدم فراہمی غریب عوام کے ساتھ ناانصافی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس اسکیم کو منصوبہ بند طریقے سے کمزور کیا جا رہا، حتیٰ کہ اس کا نام تبدیل کر کے اس کی قانونی حیثیت بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ فنڈز دینے کی ذمہ داری سے بچا جا سکے۔ کویتا نے کہا کہ اس اسکیم کے آغاز کے بعد دیہی معیشت میں بہتری آئی تھی، لیکن اب کام کے دنوں میں کو آدھا کر کے غریبوں کی روزی روٹی پر ضرب لگائی جا رہی۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ میں 2021-22 کے دوران 14 کروڑ کام کے دن تھے، جو گزشتہ سال کم ہو کر 7 کروڑ رہ گئے۔ ప్రోగ్రామ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కంటిన్యూ చేయకపోతే కూడా మనం ఎవరం కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి ఉపాధి హామీ పథకం వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతో కొంత బాగుపడ్డదన్న విషయాన్ని, ఎస్పెషల్లీ కరువు ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ సంవత్సరంలో పేద ప్రజలకు పిడికడ అన్నం పెట్టడానికి ఈ పథకం పనికొస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పథకం కొనసాగించాలి. ఈ పథకాన్ని దగ్గరుండి చాలా మంది యువకులు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్గా ఉండి మరి ఆ గ్రామంలో ఒక గ్రామం యాజ్ ఎ యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్రామంలో ఉన్న పేదవాళ్ళందరికీ ఉపాధి వచ్చే విధంగా చేస్తారు. కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు కూడా ఉద్యోగ భద్రత ఉండాలి, చట్టబద్ధత ఉండాలి, లేబర్ కోడ్ పరిధిలోకి వాళ్ళు اینٹی کرپشن بیورو ACB نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے RGI ایئرپورٹ پولیس آؤٹ پوسٹ کے 2 پولیس عہدیداروں کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر UK سدیشور اور انسپکٹر سمپتی کنکیا کو ACB رنگا ریڈی رینج یونٹ نے اس وقت پکڑا جب وہ ایک شکایت کنندہ سے 5 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کر رہے تھے اور 2 لاکھ روپے بطور پہلی قسط وصول کر چکے تھے۔ یہ رشوت ایک کیس میں چارج شیٹ داخل کرنے اور شکایت کنندہ کے اہل خانہ کو گرفتار نہ کرنے کے بدلے طلب کی گئی تھی، جو شمس آباد کے RGI ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن سے متعلق ہے۔ ACB حکام کے مطابق دونوں افسران نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کارروائی کے دوران AO2 کے گھر پر تلاشی لی گئی، جہاں سے تقریباً 33,97,000 روپے نقد رقم برآمد ہوئی، جبکہ کچھ جائیداد سے متعلق دستاویزات بھی ضبط کیے گئے، جن کی مزید جانچ جاری ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے نامپلی میں اسپیشل جج برائے ACB عدالت میں پیش کیا جا رہا، جہاں انہیں عدالتی تحویل میں بھیجنے کی کارروائی کی جائے گی۔ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ACB نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت طلب کرے تو فوری طور پر ٹول فری نمبر 1064 پر اطلاع دیں۔ شکایت کنندہ کی شکایت سنی جائے گی اور شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔
मेहदी पट्टनम पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां मामूली तनाज़े ने एक कमसिन लड़के की जान ले ली। इतलात के मुताबिक टोली चौकी के नाइस जूस सेंटर में काम करने वाले दो मुलाजमीन मुफल 19 साल और दरवेश 16 साल के दरमियान बाद किसी मामूली पर बातों पर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान तैश में आकर मुफल ने जूस सेंटर में मौजूद चम्मच लाडल उठाकर दरवेश के सर पर जोरदार वार किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जा बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुर्दखाने मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवानों का ताल्लुक रियासत बिहार से था। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मेरा भाई का नाम एमडी गुलरेज है। ये हैदराबाद में टोली चौकी वो जूस सेंटर नाइस जूस सेंटर है, वहाँ पे काम करता। आज रात में 2 महीना से काम करता। आज रात में क्या हुआ, मारपीट मतलब लड़ाई हुआ। तो उसके बाद मेरे को कॉल किया सेठ, बोला तुम्हारे भाई को नाक से पूरा खून जा रहा। तो मेरे को मैं आया वहाँ से। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरे को बोला कि नॉर्मल है। उसके बाद आने के बाद बोला कि डेट हो गया। जब पहले ये डेट हो गया था तो मेरे को बोलना चाहिए था, फिर बाद में क्यों बोला कि डेट हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए सर, मेरे को इंसाफ चाहिए। वो और ये जो यहाँ पे देखा जो गवाही देने वाला था उसको लेके भाग गया सेठ। वो किधर भी होला, वो सेठ यहाँ पे होना चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए। वो जूस सेंटर वाला सेठ लेके भाग गया वो बच्चे को जो गवाही देता था यहाँ पे, वही जूस सेंटर में नाइस जूस। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से टाटा लॉक हेड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर टिम रेफल ने शाइस्तगी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टिम रेफल ने लॉक हेड मार्टिन के आइंदा मंसूबों से वजीर आला को आगाह किया। उन्होंने बताया कि कंपनी भारत में C-130J सुपर हरकुलिस तैयारी की फाइनल असेंबली लाइन कायम करने जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि लॉक हेड मार्टिन ने आलमी जरूरियात के पेश नजर भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मुआहदा किया है, जिसके तहत F-16 तैयारों के विंग्स तैयार किए जाएंगे। इस मौके पर टिम रेफल ने तेलंगाना में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए वजीर आला को इससे आगाह किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस पेशकश पर मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए रियासत में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के एक आला सतह वफ्द ने सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव से मुलाकात की। वफ्द में इंश्योरेंस, मालियाती खदमात, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कंपनियों की नुमाइंदे शामिल थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने तेलंगाना की मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के सफ़र पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि 2014 में कायम होने वाली मुल्क की सबसे नई रियासत तेलंगाना ने गुज़िश्ता एक दहाई में नुमाया तरक्की हासिल की, जहाँ मजमूई रियासती घरेलू पैदावार GSDP और फीकस आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया, जिसमें सरकारी और वो निजी सरमायाकारी का अहम किरदार रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तेजी से शहरी बनने वाली रियासतों में शामिल और तकरीबन 1/3 आबादी हैदराबाद और उसके अतराफ में मुकीम। हैदराबाद को मुल्क का फार्मा कैपिटल करार देते हुए उन्होंने कहा कि शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी नुमाया मुकाम रखता है, जबकि पब्लिक सेक्टर इदारों की मजबूत बुनियाद ने खास तौर पर दिफाई शोबे में स्टार्टअप्स के फरोग में अहम किरदार अदा किया। रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जमहूरिया घाना के हाई कमिश्नर कवासी ओबेरी डांसो ने शाइस्तगी के साथ मुलाकात की। हाई कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने के बाद ये उनका हैदराबाद का पहला दौरा। इस मौके पर उन्होंने घाना और तेलंगाना के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। कवासी ओबेरी डांसो ने तालीम, साइंस व टेक्नोलॉजी, सेहत और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने पर जोर दिया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस तजवीज़ पर मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का सेक्रेटरिएट में सड़कों व इमारतों और महकमे ट्रांसपोर्ट पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। रियासत में सड़कों की देखभाल, गढ़ों से पाक सड़कें और इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में वज़रा BC जनार्दन रेड्डी, मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी, महकमे ट्रांसपोर्ट के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी कृष्णा बाबू, RTC MD बाला सुब्रमण्यम समेत आला ओहदेदारान शरीक रहे। वज़ीर आला की हिदायत रियासत की 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की मजबूत देखभाल यकीनी बनाई जाए। मुख्तलिफ इलाकों के जोग्राफियाई हालात का मुताला करके इसी बुनियाद पर सड़कों की तामीर की जाए। बेहतर सड़कों के जरिए आवाम को मियारी बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। कम लागत में अवामी ट्रांसपोर्ट को फरोग देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को फरोग देने की हिदायत दी।
लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में उन हथियारों का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग अगरचे के एक तल्ख़ हकीकत, लेकिन ऐसी किसी भी सोच या इक़दाम को कबूल नहीं किया जा सकता जो पूरी इंसानी तहजीब को खतरे में डाल दे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा है कि जंगें हमेशा तबाहकुन होती हैं और इंसानियत के लिए गहरे ज़ख्म छोड़ती हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें आलमी सियासत की एक हकीकत के तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल एक ऐसी हद जिसे किसी भी हाल में अबूर नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आसाम, केरलम और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2026 की शुरुआत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एस सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इस तकरीब का इफ्तिताह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में इंतखाबात को जमहूरियत का जश्न मानता है। उन्होंने शिरका से गुजारिश की कि वो रियासतों का दौरा करें, सीखें और हिंदुस्तान के तनू का मुशाहिदा करें। कमीशन मिशन मोड में काम करके आज़ादाना, शफाफ और महफूज इंतखाबात को यकीनी बनाता है। प्रोग्राम के पहले मरहले में 23 ममालिक के 43 मंदूबीन शिरकत करेंगे। उनमें दिल्ली में मुक़ीम 5 गैर मुल्की मिशनों के अफसरान भी हैं और मंदूबीन को EVM का मुजाहरा कराया गया। उन्होंने मॉक पोल में हिस्सा लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बराह रास्त तजुर्बा किया है। साइबर ठगों ने नवी मुंबई में धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया। अब वो गैस बहरान का फायदा उठाकर लोगों को गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी देकर ठग रहे। कोपर खैरा ने पुलिस स्टेशन इलाके में एक शख्स से 10,30,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक घनसोली के रहने वाले अशरफ काइन को एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को महानगर गैस लिमिटेड MGL एजेंसी का अफसर बताया और कहा कि उनका गैस बिल नहीं पहुंचा है, इसलिए उनका गैस कनेक्शन बंद किया जा रहा। परेशान होकर अशरफ ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही। ठगों ने फौरन दूसरे नंबर से एक फाइल भेजी और उसे डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही अशरफ ने फाइल डाउनलोड की, उनके मोबाइल में एक मैलवेयर ऐप इंस्टॉल हो गया और ठगों ने इस ऐप के जरिए उनके मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और उनके बैंक खाते से 10,30,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। पैसे कटने का मैसेज मिलने पर अशरफ ने फौरन कोपर खैरा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तमाम फौजी यूनिटों को फौरी तौर पर फायरिंग रोकने का हुक्म दिया। सरकारी नशरियाती इदारे इस्लामी जमहूरिया ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर जारी बयान में सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा है कि ये जंग का खात्मा नहीं है, लेकिन तमाम फौजी शाखों को सुप्रीम लीडर के अहकामात की तामील करते हुए फायरिंग बंद कर देनी चाहिए। जंगबंदी के बावजूद ईरान ने सख्त लहजे में वार्निंग जारी की है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ये इक़दाम जंग के खात्मे का इशारा नहीं और ये कि अमेरिका या इसराइल की तरफ से कोई भी छोटी सी गलती होती है तो इसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।